कहाँ पर है? इसमें नहीं है वो, इसमें routing protocol. Actually, we were learning about the routing protocol in wireless environment. Okay, we have started with this DSDV, and I think we have done the first routing protocol, that is destination sequence distance vector routing. Okay, everything is okay. Recording has been started. I'm presenting also, and 14, 13 students, 12 students are there. Okay, so we'll do. Let us start the session. It was the first one that we have seen yesterday. I think this is a proactive routing protocol, and I will let you know about the proactive and the reactive routing protocol also. As you also know that के DSDV, that is destination sequence distance. सबसे पहले तो मैं आपको ये clear कर दूँ कि why these two protocols are came into existence. Why these two protocol came into existence when we are already having the distance vector routing and link state routing. जब हमारे पास में दो प्रोटोकॉल्स है तो इन प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब है, ठीक है? तो हमने थोड़ी सी सर रिसर्च किए और उसमें फिर पता चला, थोड़ी सी रिसर्च किए और पता चला कि भाई साहब जो हमारे जो पुराने प्रोटोकॉल है दोज आर नॉट feasible फॉर दी wireless environment. Okay, because right now everything is on the move and the node which are communicating are also on the move. Okay, so they cannot manage the things with the help of those routing protocols what we were having in the last semester. Okay, that was applicable for the fixed network only. Okay, those are not applicable and those are not feasible for the the current scenario what we have, that is the wireless environment. Okay, because everyone is having their mobile phone, they are moving here and there and they are calling, they're doing messaging. Okay, internet देख रहे हैं, सब सर्व कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो everything is going on. So what I mean to say is that when the कौन है अरबाज, अलग आईडी से क्यों ज्वाइन करते हो आप लोग? So the the matter is that we are having the situation, we are having different situation right now. So for this wireless environment we have two new protocols, and these two new protocols are, first is DSDB and second is DSR. Out of these two protocols we have already covered the first one, that is destination sequence distance vector routing. In this routing, let me revise in 1 minute that each and every node keeps record of the routing information. Okay, in the form of routing table, and what are the different information they keep in record. That is nothing but destination id, kahan jana hai, what is the next node, in order to reach that destination what will be the next node. Okay, मुझे जाना है यहाँ से बॉम्बे, but what will be the next node? The next node will be the Khandeshwar station, because first of all I will catch the auto and then I will reach to Khandeshwar station, because वहाँ से मुझे ट्रेन मिलेंगी. So that is the first hope. Okay, so that is the next node immediate. What is the distance? That is number of hopes. यहाँ से पहला स्टॉप खांदेश्वर स्टेशन, खांदेश्वर स्टेशन में मैं ट्रेन पकड़ा, बैठा, वहाँ से निकला, सीधा पहुँचा वीटी स्टेशन. वीटी स्टेशन इज माय सेकंड होप. ठीक है, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ा, वहाँ से मैंने टैक्सी पकड़ा और वहाँ से मैं पहुँच गया सीधा गेटवे ऑफ इंडिया. मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना था फॉर एग्जांपल. तो एक स्टॉप, दूसरा स्टॉप एंड तीसरा स्टॉप, वहाँ से टैक्सी पकड़ के सीधा मैं पहुँच गया गेटवे ऑफ इंडिया. तो कितने होप्स लगे मुझे? 3 होप्स लगे. तो वो नंबर ऑफ होप्स आएंगे. और नंबर 4 में जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपका सीक्वेंस नंबर. तो सीक्वेंस नंबर क्या है? सीक्वेंस नंबर कैन बी एनीथिंग. ओके, दिस इज द नंबर विच इज गिवन फॉर ईच एंड एवरी अपडेट. ओके, हर एंट्री को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, सो दैट if there is any kind of update for the same node, then the sequence number will be a increased one. Okay, ताकि पुराने वाले में और नए वाले में दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सके. ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था. और बाद में फिर एग्जांपल भी लिए थे. वी हैव n1, वी हैव n2, वी हैव n3, तो चलो बाद में लगाए थे. वी हैव n1 n2 ओनली. So with respect to n1, if n1 is the one, okay, then n2 पे मतलब फॉर एग्जांपल मुझे जाना है n2 पे. ठीक है, तो डेस्टिनेशन इज n2. n1 से n2 जाने के लिए व्हाट इज द नेक्स्ट नोड? n2 इज द नेक्स्ट. वो जाहिर बात है n2 इज द नेक्स्ट नोड. व्हाट इज द डिस्टेंस? हाउ मेनी होप्स? 0 1.
so 1 hop is required. Then sequence number randomly we have given as 14. Okay, in the same way we have n3 node. So in order to reach n3, this is the destination n3. In order to reach n3, what will be the next node? That is n2 written. What is the distance? 0 1 2. Done. So this is the distance and this is the sequence number we have given randomly. Okay, we have given randomly, but that should not be a random sequence number, that will be given in the sequence only. Okay, so this was the table which is maintained by the nodes. Okay, जिसको हम लोग बोलते हैं routing table. So the very first step is to construct the routing table of each and every node. उसके बाद में अगर अपडेट आती है कुछ, तो अपडेट आर ऑफ टू काइंड ऑफ टू टाइप. वन इज द फुल डम्प एंड सेकेंड वन इज द इंक्रीमेंटल अपडेट. फुल डम्प में क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल आपका डंप कर देते हैं, और इंक्रीमेंटल में जो चेंजेस होते हैं वही खाली अपडेट करते हैं. ओके, और ये टेबल मेंटेनेंस भी हम लोगों ने देखा कि एक नोड यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई तो किस तरीके से हम लोगों ने इसको हटाया यहाँ पे, फिर बाद में वो वापस से कनेक्ट हुई, यहाँ पर हुई कनेक्ट, तो फिर उसका हम लोगों ने वापस से एंट्री की. एज यू कैन सी लास्ट में हम लोगों ने उसकी एंट्री की थी. ठीक है, तो दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द वीडियो ऑल्सो एंड इट विल बी लाइव सून. ठीक है, अगर आपको बाद में कुछ डाउट रहा तो आप लोग एक बार वीडियो देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है, कुछ ज़्यादा उसके अंदर टेंशन नहीं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज DSR. ओके, सो जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे वो पुराना वाला था, DSDV, दैट इज डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. फर्स्ट राउटिंग algorithm, first routing protocol for the wireless environment. We have second one, that is DSR, dynamic source routing. In dynamic source routing, this is called as reactive routing protocol. ठीक है, दोनों में अभी डिफरेंस समझो. तो फर्स्ट वाला आपका है, द फर्स्ट वन DSDV इज द प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल. तो प्रोएक्टिव जो लोग रहते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, सारे काम पहले से करके रखते हैं. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोएक्टिव वन इज दैट के भाई सारे काम पहले से कर लो, जो नहीं है भी रिक्वायर्ड है वो भी करके रख लो, ताकि इन केस in future if you required then you can use it, you can make use of that. Okay, that वो है हमारा प्रोएक्टिव राउट, मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच. तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो है प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल. सेकंड वन जो हमारा है वो है रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल. तो रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली कैसे, रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा वो जिसको हम लोग यूज करते हैं खाली आपका ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं. ऑन डिमांड बेसिकली क्या है, व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट then only this particular route will be find out. सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का रूट तभी फाइंड आउट किया जाएगा जब रिक्वायरमेंट आए, पहले से फाइंड आउट करके नहीं रखता है. दोनों में ये मेन डिफरेंस है, DSDV एंड DSR. DSDV इज द प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल एंड DSR इज रिएक्टिव. रिएक्ट कब करेगा, जब रिक्वायरमेंट है तब वो रिएक्ट करेगा. सो रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल ऑल्सो कॉल्ड एज on demand routing protocol. When we'll be having requirement, then only the route will be find out and given to the source. Okay, it also discover the route when required. Operation is based on the source routing. Source routing का मतलब ये है कि your source will be knowing the complete path from source to the destination. इसको सारा पाथ पहले से पता रहेगा, तो उसको source routing के बेस पर ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है. इसमें लेस ओवरहेड है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर number of messages are less. Why number of messages are less over here? Because we are finding the path only for the required one. ठीक है, जिनका रिक्वायरमेंट है उन्हीं के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं कर रहे हैं. DSDV में क्या हो रहा है, सबके लिए फाइंड आउट हो रहा है. तो सबके लिए फाइंड आउट हो रहा है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मैसेजेस विच आर फ्लोटिंग इन द नेटवर्क आर मोर. ओके, नंबर ऑफ मैसेज वहाँ पे बहुत फ्लोट हो रहे हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ मैसेज ज़्यादा फ्लोट नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जिनका रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि 5 लोग अभी 5 लोग में से खाली एक का रिक्वायरमेंट आया, तो खाली एक के मैसेजेस खाली फ्लोट कर रहेंगे, तो नंबर ऑफ मैसेजेस हमारे यहाँ पर कम रहेंगे, लेस ओवरहेड है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में कुछ फेजेस है. ठीक है, सो यू नीड टू गो थ्रू द फेजेस. अब इसमें फेजेस क्या है, द फर्स्ट फेज इज रूट डिस्कवरी एंड सेकेंड इज रूट मेंटेनेंस. ओके, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आई हैव ऑलरेडी वीडियो जो कि मैंने बनाया हूँ, लास्ट ईयर का वीडियो है, ये लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ था. तो ये वीडियो आप लोग बाद में देख सकते हैं, इसका मैं URL वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा. ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लेना. तो मैं यहाँ पर पहले डाल देता हूँ, ये आप मेरे यूट्यूब का है. सेम जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है वही एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में भी मिल जाएगा. ठीक है,
कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ थे। ओके, सो वी हैव टू फेजेस, वन इज द रूट डिस्कवरी फेज, सेकंड इज द रूट मेंटेनेंस फेज। ओके, तो यहाँ पर रूट डिस्कवरी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रूट डिस्कवरी की। इन रूट डिस्कवरी, देखो यहाँ पे पूरा ऑपरेशन मैंने करके रखा हूँ, ठीक है। इन रूट डिस्कवरी वी हैव टू पैकेट्स, ओके। वन इज द RREQ पैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है, रूट रिक्वेस्ट पैकेट। और जो सेकंड होता है वो होता है अगर कभी कोई एरर मैसेज अगर आपको रिपोर्ट करना है तो उसके लिए एक मैसेज होता है जिसका नाम होता है RERR मैसेज, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो RERR मतलब रूट एरर मैसेज, ठीक है। तो RR उसका मतलब R उसको साथ में रखा गया है, ठीक है। सो वी हैव टू डिफरेंट पैकेट, वन इज द RREQ और दूसरा है RREP, यानी कि रूट रिप्लाई पैकेट, ठीक है। सो टू काइंड्स ऑफ पैकेट्स यू विल फाइंड इन द रूट डिस्कवरी। So in the procedure of root discovery, we have two main packet. One is the root request packet, okay, जिसको हम लोग RREQ बोलते हैं, और दूसरा होता है root reply packet, ठीक है। रूट रिक्वेस्ट जो पैकेट होता है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। रूट रिक्वेस्ट जो पैकेट होता है दैट इज ऑलवेज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज विच इज गिवन टू ऑल द नोड्स, ओके। तो सोर्स उसके अंदर क्या होता है, सोर्स नोड का आईडी होगा और डेस्टिनेशन नोड का आईडी होगा सोर्स रिक्वेस्ट में, बट वो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब जो भाई डेस्टिनेशन रहेंगे वो उसको पिकअप कर लेंगे, बाकी लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ये हुआ आपका रूट रिक्वेस्ट पैकेट, सिंपल है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ये लिखना है। रूट रिप्लाई पैकेट, रूट रिप्लाई पैकेट मतलब कि आपका ये जो रूट रिप्लाई होगा, ऑब्वियसली जब आपने आपने जब मैंने क्लास के अंदर सबको आवाज़ दी, मैंने फॉर एग्जांपल किसी एक को मैंने आवाज़ दी, अमान करके मैंने आवाज़ दिया, तो वहाँ पे आप लोग सब लोग रिप्लाई करेंगे या खाली अमान रिप्लाई करेगा? ऑब्वियसली ओनली अमान विल रिप्लाई, बिकॉज उस वही उसी का नाम अमान है, ठीक है। इन द सेम वे रूट रिप्लाई जो आएगा, रिप्लाई में जो आएगा वो यूनिकास्ट रहेगा, ठीक है। इट सेंड द कंप्लीट पाथ टू द सेंटर, ठीक है। तो ये आपको जो पाथ है वो पाथ का पार्ट आपको ले आके वापस करेगा, मतलब आपको रिप्लाई देगा बेसिकली। और जो सेकंड हमारा जो है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर है। सेकंड जो फेज है, या सेकंड फेज तो नहीं बोलना चाहिए इसको, इसके अंदर जो हमारा रूट मेंटेनेंस फेज है, उसमें अगर कोई आपको एरर रिपोर्ट करना है तो उसके लिए RERR मैसेज रहता है। Any kind of error can be reported with the help of this RERR message. Okay, and root cache भी है, it store the path, जैसे फॉर एग्जांपल A to B, B to C, C to D है, ठीक है। ये तो खैर चलो बात के लिए, लेकिन A to B, B to D, तो ये बेसिकली एक पाथ डिफाइन करता है। तो एक रूट कैच भी एक रहता है, ठीक है, उसके अंदर ये पाथ स्टोर होता है। फिर इसका काम आगे आएगा तो हम लोग आगे देखते हैं। पहले तो ये जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है RREQ and RREP, okay, so these are the two packets। एक सेकेंड ना,
Okay, sorry for the disturbance. Administrative work, some of कुछ ना कुछ काम आते रहते हैं. ओके, सो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे. सो वी हैव टू मेन पैकेट, वन इज द RRQ एंड सेकंड इज द RREP. ओके, so root request and root reply plays an important role in the first phase, that is root discover करने के लिए, root को discover करने के लिए दो पैकेट बहुत काम आते हैं. ठीक है, अगेन वाइवा क्वेश्चन. रूट डिस्कवरी, पहला तो हमारा जो फेज है रूट डिस्कवरी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रूट डिस्कवरी? इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट. हम लोग को रूट ही फाइंड आउट करना है ना भाई. क्या बोल रहे हैं जब से हम लोग? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. ठीक है, व्हाई वी आर टेलिंग ऑल दिस थिंग? बिकॉज वी नीड अ ऑप्टिमल रूट. हम लोग एक अच्छा रूट फाइंड आउट करना है, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट रूट वी नीड दीज टू पैकेट. ओके, आगे चलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस DSR फर्स्ट. ठीक है, इनका एक करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसको जरा समझ के लो. एक बार आप लोग मेरा वीडियो भी देखेंगे ना, तो लास्ट ईयर का वीडियो है. अभी हो सकता क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया है, वो लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो भी आप लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक बार वापस से वीडियो देख लेना हर कोई. ठीक है, सो दिस इज द RRQ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ए हमारा यहाँ पर सोर्स है और डेस्टिनेशन कौन है? ई हमारा डेस्टिनेशन है. ठीक है, दोनों को जगह मैंने मेंशन किया हूँ. अब यहाँ पर ए जो हमारा है, तो यहाँ ई क्या कर रहा है? ये RRQ यानी कि रूट रिक्वेस्ट क्या करेगा? सेंड करेगा. रूट रिक्वेस्ट क्या रहेगा? इट इज ऑलवेज a broadcast message. Okay, so that so this particular broadcast message will be sent to B, C, D, E. सबके पास में जाएगा. अरे सबके पास में जाएगा ना ये. B के पास गया, C के पास, D के पास, E के पास. To all the node this particular packet will be reached. Okay, when it will be received by the node B, then what will happen? देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ID है. समझ के लो पहले क्या है ये. So your source node, that is A node, will send a root request, will make a packet consist of ID, source, destination. तो source कौन है भैया? A. destination कौन है? E. ये क्लियर है. और क्या है? ID है. randomly मैंने कुछ भी दे दिया ID. ठीक है, not a big deal. So 4 is the ID, A is the source, E is the destination. Okay, so this particular packet will be broadcasted into the network. Okay, so when this particular packet will be received by the node B, is it a destination? B हमारा destination है? नहीं है. जब हमारा B destination नहीं है, then what will happen? Okay, B क्या करेगा? 4 ID as it is रखा, A source, E destination, अपना पाथ उसमें ऐड कर देगा. देख भाई तू कहाँ से आया? ए से आया. तो को जाने का ई पे. ई तक का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं काम करता हूँ तुझे मैं ए से लेकर बी तक का रास्ता बता सकता हूँ. तो ए से बी तक का रास्ता क्या है? A to B ऐसा रास्ता. उसने उसमें पैकेट में ऐड कर दिया, इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया. ठीक है, हो गया. अब ये पैकेट आपका आगे बढ़ेगा, बी से डी के पास में जाएगा, क्योंकि ये लिंक हमारी स्टैब्लिश है. ओके, अब बी से डी तक गया, तो जाने के बाद में इसके अंदर ये क्या करेगा? डी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा. ठीक है, तो 4 एज इट इज, ए एज इट इज, ई एज इट इज, ए टू बी था, तो बी तक तो इन्फॉर्मेशन थी, अब डी की इन्फॉर्मेशन भी ऐड होगी. सो इट विल ऐड द इन्फॉर्मेशन फॉर डी ऑल्सो, दैट ए टू बी, बी टू डी. तो ए टू बी, बी टू डी हो गया ऐड. ठीक है, उसके बाद में चलो यहाँ का सिनेरियो देखते हैं, बिकॉज यहाँ से आगे कहीं नहीं है. ठीक है, तो यहाँ का सिनेरियो देखते हैं. ए से ये पैकेट पहुंचा सी के पास में, तो ए टू सी उसने कर लिया. ठीक है, और सी ये जो पैकेट आपका यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आगे वो ऐड कर देगा. मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? ये जो आपका पैकेट है, ये वाला जो पैकेट आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये पैकेट आपका ई के पास में जाएगा. ठीक है, अब ये जो आपका पैकेट ई के पास में पहुंचेगा, when this packet will be received by E, that is the destination node, then what it will do? अरे बोलो क्या करेगा? यहां से आपका पैकेट आया 4, सी के बाद में ई ऐड किया, तो ई जैसे ही ई मिलेगा, जैसे ये ई मिलेगा, सो दिस पैकेट विल बी एक्सेप्टेड. ओके, दिस पैकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय ई एंड द रूट विल बी सेव्ड. ओके, अच्छा, ये आपको अभी ये वाला पैकेट थोड़ा सा हल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सब बोले ये कहाँ से आया. चलो देखते हैं कहाँ से आया. ए से बी के पास पहुंचा, बी ऐड हुआ. बी से डी के पास पहुंचा, डी ऐड हुआ. यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी? सी के पास में आएगी. अरे आएंगी नहीं आएंगी इन्फॉर्मेशन? यहाँ से इन्फॉर्मेशन सी के पास में भी आएंगी. तो सी की इन्फॉर्मेशन ऐड हुई. कैसे ऐड हुई? 4 ए ई
ए बी डी सी, ठीक है, सी की इन्फॉर्मेशन है टू बी। फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाएंगी बोलो? ये पैकेट यहाँ से यहाँ आने के बाद में यहाँ क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज उसमें ए ऑलरेडी ऐड है, तो ए की तरफ तो जा नहीं सकता, ये आएगा ई की तरफ। जब ई की तरफ आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4A, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, 4A इज द डेस्टिनेशन, सॉरी ए इज द सोर्स, ई इज द डेस्टिनेशन। ए से स्टार्ट हुई हमारी जर्नी, ए ए से बी, बी से डी, डी से सी, और सी से फिर आया ई, ठीक है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द रूट दैट इज ए टू बी टू डी टू सी टू ई, सो दैट इज द रूट, ओके, दैट इज वन रूट, ओके। एंड अगेन इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम लोग ने क्या बोला आपको? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक रूट है हमारे पास में, और एक रूट और है दैट इज ए टू सी टू ई। तो बोलो दोनों में से सस्ता रूट कौन सा है हमारे पास में? अरे बोलो, दोनों में से सस्ता वाला रूट कौन सा है? दोनों में से ऑप्टिमल, दोनों में से बेस्ट रूट कौन सा है हमारे पास में? एनी आंसर? अरे बोलो जल्दी, देखो टाइम हो गया है। शिफा, ओके गॉट इट। तो ये दोनों रूट है हमारे पास में। चलो मेरा काम है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ए टू बी टू डी टू सी टू ई, सो दैट इज वेरी लॉन्ग रूट, ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली in comparison with A to C to E. So this, this route is very simple, and this path will be selected. So ये वाला जो path है A to C to E will be accepted and will be saved, okay, will be saved at the source, okay। तो A को जब भी भेजना रहेगा E को, तो वो ये वाला path क्या करेगा? चूज करेगा, that is dynamic source routing, okay। So once the path is decided, there will be a reply, E to C reply जाएगा with complete packet, और फिर C to A जाएगा रिप्लाई। सो E to C कहाँ पर है भाई? E to C and C to A। So reply E will send the reply to C, and C will reply to A, ठीक है। तो complete path A के पास में पहुंच जाएगा। That's all for the dynamic source routing. I hope you understood this one. Okay, let me give you the attendance from next